मुकुल सर, मुकुल सर, जी उदय जी, सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, फाइन एंड यू? हाँ फाइन सर। सर वो दो लोग भी ज्वाइन हो गया। अभी संदीप सोलंकी मेरे पास में ही है और रोहित दांगी वो उन्होंने ज्वाइन हो गए हैं। एग्रो सॉल्यूशन, दांगी एग्रो सॉल्यूशन के नाम से इसमें शो हो रहा है। ज्वाइन कर लेना। Good morning, all the participants, and a warm welcome to the 44th webinar series, ACABC Agribusiness webinar series. The theme of today's webinar is Agri Enterprise Evolution: How AgriClean Shapes Future Farming Ventures. And today we are having
three speakers: Dr. Mukul Kumar sir, Nodal Officer, KVK Horizon, and Mr. Sandeep Kumar, founder of Agri Clinic, and Mr. Rohit Dangi, founder, Dangi Agri Solutions. Coming to the background of this webinar series, I request all the participants to open your cameras. Just for time being, since we are starting the program, all the nodal officers, coordinators, kindly, if you are not having any network issues, you can open your cameras. Coming to the background of this program, as a new initiative under the AC and ABC scheme, the management started the webinar series since 2021. The webinar series has been started. It serves as a platform for cross learning and also sharing the experiences. Why? Because the learning curve for every entrepreneur is different, and by seeing is believing, and by seeing how the entrepreneurs have been successfully established their ventures and sharing the experiences, the other entrepreneurs can learn from them. And with this background, our ex-Director General P. Chandrasekhar sir initiated the webinar series during the year 2021, and till now 43 webinar series have been successfully completed, and this is the 44th webinar series. This webinar series, we have invited our Nodal Training Institute, KVK Horizon, Madhya Pradesh State, and coming to the Nodal Training Institute, KVK Horizon, till now they have completed 6 training batches. In the 6 training batches they have completed, they have trained 185 candidates. Among them, 97 candidates have successfully established their ventures. Their success rate is 52.43. And the handholding support given by the nodal officer, KVK Horizon, was very excellent. I can say that. With this brief introduction, I request Dr. Mukul sir to start the session. Mukul sir, over to you. Sir, you are on mute. Thank you, Udayji. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, all of you. Myself, Dr. Mukul Kumar Vishnoi from Krishi Vigyan Kendra Raisen, as a horticulture scientist and nodal officer. First of all, I would like to thank Dr. Sai Maheshwari ma'am mostly Mr. P. Udayji, State Consultant, Madhya Pradesh, previously Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and now he is working as a State Consultant, Uttar Pradesh. And all dear nodal officers, बहुत ये खुशी की बात है कि मैनेज और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के माध्यम से इस तरीके के वेबिनार या आयोजन कराए जाते हैं, और जो हमारे नोडल ऑफिसर डिफरेंट नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर अभी इसमें हमारे माध्यम से इसके कनेक्ट हैं, और जो हमारे बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो एग्रीप्रेन्योर इसमें अभी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, इसके माध्यम से उनको एक अपने एग्री वेंचर से संबंधित कुछ जानकारी हम अपने माध्यम से या मैनेज के माध्यम से जो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। एक संक्षेप में मैं अपना बताना चाहूँगा कि हम कृषि विज्ञान केंद्र में एज ए साइंटिस्ट यहाँ पर काम करते हैं, और अभी मैनेज हैदराबाद के द्वारा एक नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मध्य प्रदेश में हमें नियुक्त किया है, वो 2022 में एज ए नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये इसको अप्रूवल दिया था। कृषि विज्ञान केंद्र हमारा ये 2004 से कार्यरत है, और 2004 से हम जो है लगभग 20 साल का जो कार्यकाल हमने पूरा किया है। इस 20 सालों में हमने लगभग जिले के प्रत्येक गांव में हमने जो है कनेक्टिविटी स्थापित की है, और जो हमारे किसान हैं उन किसानों के बारे में एक
लैंड कार्यक्रम या नतीजा है कि हमें जो मैनेज और ACABC का जो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है उसमें सभी मैनेज के प्यार और सपोर्ट से हम काफी अच्छा कर रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का जो परिवार हमारे साथ एक सपोर्टिंग नेचर रहता है और हमारे जो स्टेट कंसल्टेंट रहते हैं उसका जो हमारा सपोर्टिंग नेचर रहता है उसमें हम दिन पे दिन मेहनत करके बहुत अच्छा अपना जो एक अपना कायम स्थापित कर रहे हैं और एक नई हम ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं, जिसके हम कुछ मेहनत करने के बाद आज स्थिति ये है कि हमने जो 52% जो सक्सेस रेट अपना कायम किया है। मैं उदय जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसे रन करने की कोशिश करें। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 2004 से कार्यरत है उसमें लगभग 20 सालों में हमने जो कार्य किया है वो चाहे ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से किया हो या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किया हो या ट्रेनिंग के माध्यम से किया हो, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्लीज प्रीवियसली इनिशियल उदय जी या थैंक यू। आज जो हमने मैनेज ने हमें इनवाइट किया है उसके लिए मैं सबसे पहले सभी को थैंक यू देना चाहूंगा। और ये एक बहुत ही इमर्जिंग आजकल हमारा जो पॉइंट है और हमारे जितने भी नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या नोडल ऑफिसर्स हैं या एग्रीप्रेन्योर जो जुड़े हुए हैं एग्री एक वेंचर्स के माध्यम से और फ्यूचर में जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके से हम सेव दे सकते हैं, फार्मिंग वेंचर्स के माध्यम से दे सकते हैं। रूरल यूथ जो हमारा आज की तारीख में वो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अपने वेंचर को क्रिएट करने के साथ कैसे वो एक एग्रीकल्चर को नई दशा और दिशा दे सकता है, उसी के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ये एक टाइटल दिया है हमारे मैनेज ने, उसके लिए मैं मैनेज को थैंक्स कहना चाहूंगा। और बताना चाहूंगा कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की आधारभूत जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट की है। जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट एक सेंट्रल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है और जो भोपाल राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की उसी से लगा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है। और लगभग इसमें जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन वो विज्ञान प्लेट्यू में ये आता है। रेनफॉल इसका 1327 मिलीमीटर पर एनम, जो 1327 मिलीमीटर इसकी जो बारिश हमारा एनुअली रेनफॉल है। और टेम्परेचर जो इसका मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और मैक्सिमम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के जो सेंट्रल पार्ट में है उसमें बिलो टेम्परेचर भी काफी नीचे जाता है और अब भी टेम्परेचर काफी ऊपर तक जाता है। उसमें हमारे लिए चैलेंजेस किसानों के उसमें सामने आते हैं कि किस तरीके से हम खेती को उसको मॉडरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें जो है नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें जो है अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी प्रमोट कर सकते हैं। उसी के लिए केवीके रायसेन कार्यरत है और केवीके रायसेन के साथ जो मैनेज ने एग्री क्लिनिक का जो एक ये हमें तोहफा दिया है और हमें जो इसका नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है तो उसमें हम एक बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के रूरल यूथ हैं या हमारे जो फार्मर्स हैं उसके लिए हम कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। उसमें जो किसान अपनी खेती को बहुत अच्छा लाभकारी बना रहा है। हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे ऑल इंडिया में अपना नाम इस समय जो स्थापित कर रहा है, खास करके राइस कल्टीवेशन में। जो धान का कटोरा इस समय जो छत्तीसगढ़ को कहा जाता था धान का कटोरा, इस समय हमारे मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे की बात रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। और जो ज्योग्राफिकल एरिया 848,000 हेक्टेयर एरिया है जिसमें नेट सोन एरिया 428,300 हेक्टेयर। इसमें मेन ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो टोटल क्रॉप एरिया है 533,700 हेक्टेयर एरिया, जिसका ओनली जो 428,000 हेक्टेयर नेट सोन एरिया है इसमें 3.15 हेक्टेयर 1000 हेक्टेयर एरिया में
धान ओनली अकेला कल्टीवेशन हमारा इस ईयर हो रहा है। तो 4 to 8.3 थाउजेंड हेक्टेयर एरिया में 3.1 थाउजेंड हेक्टेयर एरिया में लगभग 90% एरिया अकेले राइस कल्टीवेटेड एरिया हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और बहुत बड़ा ये एम्पायर एक तरीके से राइस फील्ड में, और टोटली बासमती राइस इसके लिए अपना पकड़ बना रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये कुछ टोटल इरिगेटेड एरिया है ना, 194,000 हेक्टेयर। इसमें मेजर क्रॉप में खरीफ और रबी में सोयाबीन, पेडी, पीजेलपी, मेज और ये खरीफ सीजन है, और रबी सीजन में वीट, मेनली वीट और ग्राम, इसका मेनली क्रॉप, ये दो क्रॉप जो है कवर करती है। बाकी लेंटिल, पी, लिनसीड, इसको भी हम ग्रो कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर एरिया काफी कम एरिया में है, लेकिन अभी जो है धीरे 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 वो इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ तहसील्स हैं 7 ब्लॉक्स हैं, और रूरल पॉपुलेशन लगभग 11 लाख रूरल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो है। तो इसमें नंबर ऑफ कल्टीवेटर जो है 1,08,499 है, जिसमें हमारे मैक्सिमम जो है वो मीडियम फार्मर्स हैं। मीडियम फार्मर्स लगभग इसमें 53 लाख हैं। 48% जो मीडियम फार्मर्स कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें हमें जो है मीडियम फार्मर्स की कैटेगरी में मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ये जैसे मैंने बताया कि 7 ब्लॉक हैं, उसका एक ये लोकेशन दिया है रायसेन डिस्ट्रिक्ट का कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉक में ये डिवाइड करा हुआ है। इन 7 ब्लॉकों में हम जो है कार्य कर रहे हैं, और हमारे रायसेन जिले में एसी एबीसी होने के कारण इन 7 ब्लॉक के साथ हम पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा एक पकड़ बना रहे हैं। और इसमें लगभग लगभग हम सब ब्लॉकों में जो बैंक के माध्यम से हम लोन प्रोवाइड करा चुके हैं, जितने भी हमारे जो एग्रीप्रेन्योर है। नेक्स्ट प्लीज। टोटल जो विलेजेस हैं हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में वो 1514 विलेजेस टोटल विलेजेस हैं, जिसमें ये 7 ब्लॉक जो सांची ब्लॉक में हमारा रायसेन जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो सांची ब्लॉक में सिचुएटेड है। इसमें 7 ब्लॉक में सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, उदुल्लागंज, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा, ये 7 ब्लॉक के हैं, और उसमें टोटल विलेज की संख्या 1514 जो टोटल विलेजेस हैं। लगभग 60% जो विलेजेस में हमने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अपना जो रीचिंग पॉइंट है वो बनाया है। लगभग हम 60% विलेजेस में मूव करते हैं, उसमें लगभग उसमें ओएफटी के माध्यम से, एफएलडी के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जो है अवेयर करते हैं। जो रूरल यूथ है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है, बायोलॉजी बैकग्राउंड का है, वो हमारे यहाँ पे एग्री क्लिनिक की ट्रेनिंग करने आ रहे हैं। तो लगभग 1514 गाँव इसमें हमारे जो है अप्रोचेबल मोड में है, और लगभग उसके 60% जो विलेजेस हैं वो हमारे केवीके में टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के लिए किसान मेले में या फिर जो कोई डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट होती है उसके लिए वो हमारे आते हैं, और एक तरीके से उसका वो लाभ लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मेजर पोर्शन है कि एरिया और प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि पेडी में हम नेशनल लेवल प्रोडक्टिविटी के करीब में लगभग उससे ऊपर हैं। हमारा जो अभी एरिया 2,15,100 है, ये लास्ट ईयर का है। जो करंट ईयर में 3,15,100 एरिया हमारा पेडी कल्टीवेशन में है अभी करंट में। ये बहुत मोस्ट प्रोबली हमको ये करता है कि इसमें जो बात करते हैं कि एक जिला एक उत्पाद में, तो उसमें पेडी और बासमती राइस, पेडी के केस में बासमती राइस हम इसको जो है बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पर कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पर रायसेन जिले में आ रही हैं बासमती राइस में। जो दावत जैसी बहुत बड़ी कंपनी जो हमारे यहाँ पे अपने बहुत तरह तरह के उसने जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट बनाई है, उसी को देख के किसान काफी प्रभावित हो रहे हैं। और पंजाब
हरियाणा के बाद हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट राइस के मामले में जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं वो भी एक बहुत हायर मोड में है, और हमारा जो प्रोडक्शन है उसका भी काफी हमारा हायर मोड में चल रहा है। तो इसमें एरिया लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर एरिया के आसपास में है। तो ये पेडी, सोयाबीन, पिजन भी इसका एरिया और प्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्टिविटी के केस में हम बहुत अच्छा हम करते जा रहे हैं। वीट में मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 8 सालों में जो कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश में लिए हैं, तो उन कृषि कर्मठ अवार्ड में रायसेन की भी भूमिका बहुत अच्छी है। तो इसमें हमारे वीट, चिकपी और लैंटिल ये काफी अच्छा हमारे यहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जो बेस केवीके के मैंडेट हैं, जो उसमें हमारे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस का जो ट्रेनिंग सेंटर, हमें नोडल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। लगभग हमारा केवीके रायसेन और एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस का दोनों का एक ही मैंडेट रहे कि हम रूरल यूथ, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम रोजगार की बात करते हैं, उसको हम नौकरी देने की बात करते हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। उसी के लिए हम जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी को फार्मर्स फील्ड तक ले जाने का काम करते हैं केवीके। तो उसमें ऑन फार्म ट्रायल जो हमारे मैंडेट हैं, उसमें बेसिकली वो ऑन फार्म ट्रायल, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर और फार्मर्स एंटरप्रेन्योर एंड मार्केट लिंकेज। ये जो हमारा फार्मर एंटरप्रेन्योर एंड मार्केट लिंकेज है, ये हमारा बेसिकली ये रहता है कि फार्मर्स को हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरह उसे ले जाते हैं और उसको स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हमें उसको स्किल ट्रेन करते हैं, और फिर उसको मार्केट लिंकेज के साथ उसका लिंकेज करवा के उसकी जो प्रोडक्शन है उस प्रोड्यूस को एक मार्केट से लिंक करा के एक अच्छा वो प्रॉफिट लेता है। जो भी जहां गैप है किसान और साइंटिस्ट में, वो केवीके काम करता है कि जो लैब में या वैरायटी जो स्टेब्लिश्ड वैरायटी है या रिलीज वैरायटी है, उन वैरायटी को हम किसानों तक कैसे लेके जाएं, उसी का जो केवीके एक माध्यम है कि हर जिले में जो केवीके हैं, लगभग 730 केवीके हमारे पूरे भारत में कार्यरत है। उन 730 केवीके में 731 केवीके में एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारा रायसेन भी है, जिसमें हम जो है पूरे इन सभी मैंडेट के तहत, ऑन फार्म ट्रायल के तहत, वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत, टेक्नोलॉजी असेसमेंट के तहत या नॉलेज रिसोर्स सेंटर या फार्म एंटरप्रेन्योर के तहत हम जो है एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ उसमें हम जो अपनी मैंडेटरी वर्क के तहत जो काम करते हैं उसमें ये है कि कंडक्टिंग ऑन फार्म टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई लोकेशन स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अंडर वेरियस फार्मिंग सिस्टम। जो वेरियस फार्मिंग सिस्टम में हम जो लोकल स्पेसिफिक जो वेराइटी है, लोकल स्पेसिफिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम इवेलुएट करते हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र में। देन हमको जो है किसान के पास जाते हैं, किसान को लेके जाते हैं, और उसमें हम जो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं फार्मर फील्ड पर, और उसको किसान देख के जो आसपास के किसान है वो स्वतः ही वो प्रभावित होते हैं और वो करते हैं। तो इसका सीधा हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारे भारत सरकार ने एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल यूथ को कनेक्ट करने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो जोड़ा था, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र एसीएबीसी के साथ मिलकर ये दोनों काम कार्य कर रहा है। इसमें कंडक्टेड नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो फार्मर्स के लिए हम करते हैं, अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसके प्रति हम उनको जो है नॉलेज अपडेट करते हैं और उनकी जो है नीड बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। इसमें हम जो है कंडक्टेड ट्रेनिंग और एक्सटेंशन पर्सनल to orient them in the frontline area of technology development, work as knowledge and resource center of agriculture technology for supporting initiative of public, private and venture sector improving agriculture economy of district। ये हम जो मेनली 5 हमारे मैंडेट थे, उन मैंडेट को किस तरीके से हम करते हैं, किस तरीके से किसानों तक ले जाते हैं, किस तरह हम अपने केवीके पे करते हैं, किस तरीके से हमको फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन को लेके जाते हैं, वो सारा हम केवीके के माध्यम से अपने किसानों के पास लेके जाते हैं। किसान की आमदनी को हम उसकी एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, और किसान जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है, नई नई जो वेराइटी है उसके प्रति अवेयर रहे, उसके लिए हम समय समय पे उनका स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग करवाते हैं और किसान मेले ऑर्गेनाइज कराते हैं। हम किसानों के बीच में जो है वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके माध्यम से किसान और रूरल यूथ
वो नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर रहता है। नेक्स्ट प्लीज। ये केवी के जो कार्यकर्ता है, ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर, उसमें मेनली 3 वो रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करने का काम है। टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का काम है, जो टेक्नोलॉजी कहाँ से, कौन सी टेक्नोलॉजी ली है, कहाँ से आई है, कैसे हमें डालना है। और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारे हैं उसको किस तरीके से हमें यूज करना है। इन सभी को मिला के एक ही पर बात आती है, चाहे वो मैनेज हैदराबाद के द्वारा कही जाती हो या भारत सरकार जो हमारे तो उस पर बार बार फोकस करती है कि मैक्सिमाइज एंटरप्राइज आउटपुट, कि किसान अपना जो है एंटरप्राइज को मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से निकालेगा, किस तरीके से वो अपनी कल्टीवेशन करके वो मैक्सिमाइज आउटपुट करेगा। तो सब इसका सभी का एक कॉन्सेप्ट जो आउटपुट पर आता है वो आता है मैक्सिमाइज एंटरप्राइज आउटपुट, की एंटरप्राइज का आउटपुट क्या है। तो हम चाहे वो मैनेज एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस, जो हमें केवीके के माध्यम से हमें जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, हमारा मेन उद्देश्य है कि किस तरीके से हम जो है उसको किसान के या फिर जो हमारे रूरल यूथ है वो अपने एग्री वेंचर को स्थापित करते हैं, तो उसको मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की ఫస్ట్ అంకుల్ మీ పేరు ह्यूमन रिसोर्स है जो है, तो बहुत ही एक हमारा वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड एक हमारे जो जितने भी स्टाफ हैं और हमारे जो एक कृषि विज्ञान केंद्र का परिवार है, बहुत ही एक वेल एजुकेटेड, वेल मेंटेन और वेल एक्सपीरियंस्ड सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, जिसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हेड प्रमुख डॉक्टर स्वप्निल दुबे जो सीनियर साइंटिस्ट हेड हैं, और बेसिकली उनका जो डिसिप्लिन एग्रोनॉमी है और उनका लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस इस केवीके में है और पीएचडी उनकी एग्रोनॉमी से है। साथ में मैं डॉक्टर मुकुल कुमार जो हॉर्टिकल्चर एज ए हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट यहाँ कार्य कर रहा हूँ, पीएचडी हॉर्टिकल्चर उनकी है और उस पर लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस उसमें है। साथ में हमारे प्लांट प्रोडक्शन के साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी हैं, जिनका लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस है और पीएचडी उनकी एंटोमोलॉजी में है। साथ में डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ला है जो पीएचडी एक्वाकल्चर में और लगभग 5 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो फिशरीज में उनकी एक्सपर्टाइज है। और हमारी जो होम साइंटिस्ट मिसेज लक्ष्मी चक्रवर्ती जी हैं, वो होम साइंस में यहाँ पर एज ए साइंटिस्ट का कार्य कर रही हैं और उनका जो है लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। साथ में डॉक्टर रंजीत सिंह राघव जो सॉयल साइंस के साइंटिस्ट हैं और लगभग उनका पीएचडी सॉयल साइंस में और 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है। साथ में मिस्टर आलोक सूर्यवंशी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एमएससी हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस उनका भी है। और उसमें साथ में डॉक्टर अंशुमन गुप्ता जो वेटरनरी साइंस है बीबीएससी और एमएससी एनिमल हस्बेंड्री से 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास, 20 साल का एक्सपीरियंस है कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन का। साथ में फार्म मैनेजर सुनील कैदवाल जी हैं जो बीएससी और एमएससी हैं, उनका 17 साल का एक्सपीरियंस है। साथ में जो कंप्यूटर प्रोग्रामर में प्रोग्राम मिस्टर पंकज भार्गव जी जो एमसीए हैं और लगभग 20 साल का उनका भी एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की जो पूरी एक टीम है जो इसमें हमारे किसानों के लिए कार्य कर रही है, तो बहुत ही वेल मेंटेन, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड एक फैमिली है और उनकी सपोर्ट की वजह से हम जो है एक नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एक मध्य प्रदेश ही नहीं अभी तो हम पूरे भारत में बहुत अच्छा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमारे मैनेज की टीम का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके साथ में हम बहुत अच्छा करने के लिए अग्रसर हैं। लगभग टोटल स्टाफ हमारा जो 16 का है, जिसमें टेक्निकल 10 है और अदर 6 है। ये टोटल एक हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का एक टोटल स्टाफ है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है 543 स्क्वायर मीटर की, फार्मर्स हॉस्टल है 307 स्क्वायर मीटर का, स्टाफ क्वार्टर है 400 स्क्वायर मीटर का, डेमोस्ट्रेशन यूनिट है 160 स्क्वायर मीटर की, गोडाउन है 65 स्क्वायर मीटर का। तो लगभग ये उसकी बेसिक यूनिट जो हमने कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में स्थापित की है, जिससे हमारे जो एग्रीप्रेन्योर हैं वो विजिट भी करते हैं, देखते भी हैं और साथ में वो अच्छा अवेयर भी रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कुछ हमने एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस की जो ट्रेनिंग सेंटर चलाने से पहले हमने जो स्किल डेवलपमेंट में काम किया है, तो उसमें हमने कुछ ट्रेनिंग जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत किया है। तो हमारे रायसेन जिले
में कुछ लड़कों को स्किल ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनका जो है स्वरोजगार स्थापित करवाया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके के हमने जो है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग उनको कराई है। नेक्स्ट प्लीज। ये ट्रेनिंग बी कीपर ट्रेनिंग था जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत हमने कराया था कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन ने, और लगभग 2019 में ये हमारा 2 फरवरी से 18 मार्च के बीच चला था, और इसमें लगभग 20 बेनिफिशरी थे, और इनके जो 20 बेनिफिशरी थी ट्रेनिंग को करने के बाद उन्होंने खुद का भी अपना स्वरोजगार स्थापित किया था, और उसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र की बहुत अच्छी भूमिका रही थी। जो हमने जो स्किल ट्रेनिंग के तहत इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाने के बाद उनका खुद का स्वरोजगार स्थापित करवाया था। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ उसके फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये नेक्स्ट ट्रेनिंग हमने जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की बी कीपर्स की कराई थी नेक्स्ट ईयर में 2020 में, वो 24 जनवरी से 21 फरवरी के बीच थी। उसके कुछ ये फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसके, जो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपना जो स्थापित किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये एक मशरूम ग्रोअर का हमने जो है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल के तहत हमने इसकी ट्रेनिंग की थी। तो इसमें भी जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश के जो युवा थे उन्होंने अपना इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपना मशरूम का व्यवसाय स्थापित किया था, जो 1 फरवरी से 20 मार्च के बीच किया था। ये कुछ उसके फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये दूसरी मशरूम ग्रोअर की ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत हमने कराई थी, जो 23 जनवरी से 20 फरवरी के बीच थी। तो इसमें भी 20 बेनिफिशरी थे। ये उन्होंने अपना एग्री वेंचर स्थापित किया है हमारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, जो मशरूम को काफी अच्छा एक ग्रो कर रहे हैं, और उनका जो है ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की। जो हमने अचीवमेंट की बात करते हैं 2022 जनवरी 2022 को हमारा जो एग्री क्लिनिक सेंटर यहाँ पर अप्रूव हुआ था मैनेज के द्वारा, और फर्स्ट बैच हमने स्टार्ट किया था 11 अप्रैल 2022 को, जो 25 मई 2022 तक चला था। इसमें हमने मात्र 2 सालों में हमने जो टोटल बैच कंप्लीटेड किया है वो 6 बैच हमने कंप्लीटेड किया है, और इसमें टोटल जो ट्रेंड एग्रीप्रेन्योर है 185 हैं, और स्टेब्लिश्ड एग्री वेंचर जिनमें से लगभग 97 ने अपने एग्री वेंचर स्थापित कर लिए हैं। अभी कुछ संख्या बढ़ गई है, लगभग 100 से ऊपर है। तो इसमें हमने अभी जो अपडेट होना बाकी है, लगभग 100 से ऊपर 102 103 लगभग एग्री वेंचर स्थापित हमारे हो चुके हैं, जिसमें टोटल बैंक लोन जो है 5.10 करोड़। 2 सालों का ये हमारे रायसेन जिले का एक अचीवमेंट है कि हमने 5.10 करोड़ के बैंक लोन के माध्यम से 97 जो एग्रीप्रेन्योर है उन्होंने अपना एग्री वेंचर स्थापित किया है, जिसमें लगभग 2 कैंडिडेट की सब्सिडी रिलीज हो चुकी है, और लगभग 8 कैंडिडेट की सब्सिडी सैंक्शन हो चुकी है। अब हम बहुत लड़के ऐसे आते हैं और कहते हैं कि साहब इसमें सब्सिडी नहीं आती है या सब्सिडी सैंक्शन नहीं होती है। अभी हमारे 2 साल हुए हैं। 25 मई को हमारा पहला बैच समाप्त हुआ था, 25 मई 2022 को, और आज सितंबर है। लगभग हमें 2.25 साल हुए हैं, और 2.25 सालों में हमने जो लगभग सब्सिडी रिलीज 2 की सब्सिडी रिलीज हो गई है, और सैंक्शन 8 कैंडिडेट की सब्सिडी सैंक्शन हो गई है। इसमें हमने लगभग 5.25 करोड़ रुपए के लोन से जो टोटल 97 एग्री वेंचर स्थापित हुए हैं, और ये हमारे जो स्टेट कंसल्टेंट मिस्टर पी उदय जी है उनकी लगातार सपोर्ट के माध्यम से, और एग्री के मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साजी फंड के माध्यम से, या डॉक्टर साई महेश्वरी जी के जो मार्गदर्शन में हम जो कार्य कर रहे हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र का ये पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर जो इसमें कार्य कर रहा है, उसी की बदौलत आज हम जो है पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं इंडिया में अपना जो है एक अच्छा अचीवमेंट स्थापित कर रहे हैं। और उसी की पहचान है कि 5.25 करोड़ रुपए के लोन से हमने 97 कैंडिडेट का कम से कम लोन एग्री वेंचर स्थापित हुआ है। लगभग 30% हमारा जो है बैंक लोन सैंक्शनिंग परसेंटेज है, तो एक बहुत अच्छा ये लोन परसेंटेज माना जाता है। और कृषि विज्ञान केंद्र में जब आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हमें इतना जो है अचीवमेंट मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे और आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट प्लीज। लगभग
जो 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, हमने लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर किए हैं। 18 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें रायसेन, विदिशा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सीहोर, इंदौर, भोपाल, बड़वानी, बालाघाट, झाबुआ, सिवनी, राजगढ़, नरसिंहपुर, खंडवा, सागर, हरदा, बुलंदशहर, लगभग हमने जो है 18 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं। 18 डिस्ट्रिक्टों में से 11 एग्री वेंचर क्रॉप प्रोडक्शन है, फिशरीज है, ड्रिप इरिगेशन है, पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, वेजिटेबल प्रोडक्शन है, मार्केटिंग और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट एंड एग्री इनपुट। लगभग 11 एग्री वेंचर उन्होंने डेवलप किए हैं। तो लगभग 18 जिले, एक ही हमारा रायसेन ही जिला नहीं है, लगभग 18 जिले हमने कवर किए हैं 52 जिलों में से। उन 18 जिलों में से जो 11 एग्री वेंचर है, उस तरीके से हमने उसमें काम किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ बैच वाइज हमने इसमें वो निकाला है कि किस तरीके से हमने बैच वाइज में कितने लोन कराए हैं। लगभग हमारा जो फर्स्ट बैच हुआ था, फर्स्ट बैच में हमारे 22 कैंडिडेट थे, उसमें से लगभग 7 लोन सैंक्शन हुए 1.23 करोड़ के, और एग्री वेंचर उसमें 17 एग्री वेंचर स्टेब्लिश हुए थे, जो हमारा 11 अप्रैल से और 25 मई के बीच चला था 2022 में। नेक्स्ट प्लीज। ये सेकंड बैच जो हमने किया था 35 कैंडिडेट का, तो उसमें लगभग 9 लोन सैंक्शन हुए थे, और इसमें 1.02 करोड़ हमारे जो है लगभग लोन सैंक्शन हुए थे, और एग्री वेंचर इसमें 20 स्टेब्लिश हुए थे। सेकंड बैच के ही जो हमारे कुछ ट्रेनीज हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड के, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड के ट्रेनीज आज हमारे इस लेवल पे लगभग 1-1 करोड़ रुपए का वो टर्नओवर ले रहे हैं। अभी उनके माध्यम से भी आप सुनेंगे कि उनका जो है टर्नओवर कितना है, वो किस तरीके से किसानों के बीच में कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपना एग्री वेंचर को स्थापित करने के लिए बैंक से कितना लोन लिया है, कितना उन्होंने सब्सिडी ली है, और किसानों के बीच में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कितने किसान उनसे जुड़े हुए हैं। इन फर्स्ट और सेकंड बैच के जो हमारे कुछ एग्रीप्रेन्योर है, अभी आप लोगों से चर्चा करेंगे। उसमें लगभग हमारा 20 एग्री वेंचर जो स्थापित हुए थे 1.02 करोड़ के। बहुत ही अच्छा हमारा जो सेकंड बैच का फर्स्ट और सेकंड बैच का परफॉर्मेंस रहा है, उसी के बेस पे हम जो है आगे एक अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये थर्ड बैच की कुछ परफॉर्मेंस है कि हमने 32 कैंडिडेट हमारे थे, इसमें लोन सैंक्शन जो हमारे 5 हुए थे, 1.15 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए थे, और लगभग इसमें 21 एग्री वेंचर स्टेब्लिश हुए थे। तो इसमें भी हमारे काफी अच्छा जो कस्टम हायरिंग के केस जिसने हार्वेस्टर वगैरह लिए थे, तो उसने लगभग एक एक सीजन में सोयाबीन के 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपए उन्होंने एक सीजन में उन्होंने अर्निंग की है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो रायसेन जिला और विदिशा और लगभग 18 जिले जो हमारे मध्य प्रदेश में हमने कवर किए हैं, तो उसमें कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये फोर्थ बैच की कुछ अचीवमेंट है कि 35 कैंडिडेट थे, उसमें 3 लोन सैंक्शन हुए हैं 38 लाख के, और फिर लगभग 13 एग्री वेंचर स्टेब्लिश हुए हैं। उसमें भी काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस है, और अभी कुछ अंडर प्रोसेस हैं जिनका लगभग अभी थर्ड और फोर्थ बैच के जो एग्रीप्रेन्योर है, उनका लगभग लगभग अभी विद इन ए मंथ 5 to 6 जो लोन है वो सैंक्शनिंग कंडीशन में है। तो 5 to 6 लोन अभी उनका जो है लगभग इसी मंथ में सैमसंग होने की उम्मीद है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म वो कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये फिफ्थ बैच की कुछ परफॉर्मेंस है कि हमने जो है 26 कैंडिडेट इसमें हमने लिए थे। 26 कैंडिडेट में से लगभग 4 एग्रीप्रेन्योर का लोन सैंक्शन हुआ था, और उसमें 58 लाख के बैंक लोन अमाउंट से उन्होंने अपना एग्री वेंचर स्थापित किया था। तो एग्री वेंचर उन्होंने 9 एग्री वेंचर स्टेब्लिश किए हैं, और इसमें मोस्टली जो ये हार्वेस्टर रहते हैं, तो हार्वेस्टर परचेस किया गया था, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इस समय धान का एरिया काफी बढ़ता जा रहा है, जिसमें जो होशंगाबाद रायसेन जिला काफी लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें हमारे रायसेन, विदिशा और होशंगाबाद जिला, 3 जिलों में जो हार्वेस्टर की दिन पे दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और कुछ फार्म इम्प्लीमेंट जैसे लेजर लैंड लेवलर है, या जीरो टिलेज मशीन है। तो हमारे जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के माध्यम से जो एग्रीप्रेन्योर है, उन्होंने कस्टम हायरिंग या फार्म मशीनरी यूनिट के माध्यम से उन्होंने अपना ये फार्म, चाहे बात करें हम
हार्वेस्टर की बात करें, हम लेजर लैंड लेवलर की, या बात करें हम जो है जीरो टिलेज मशीन की, तो उसमें हम सारी फील्ड में हमारे एग्रीकल्चर ने अच्छा काम किया है और अपने फील्ड में वो बहुत ही अच्छा अर्निंग और बहुत अच्छा किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं, और किसानों को उससे जो है दिन पे दिन उनकी जो है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये 6 बैच का अचीवमेंट है कि 35 जो बेनिफिशरीज थे, 35 बेनिफिशरीज में से लगभग 4 के लोन सैंक्शन हुआ था, और उसमें 95 लैक्स अमाउंट था जो बैंक लोन अमाउंट था, और एग्रीवेंचर 17 एग्रीवेंचर स्टेब्लिश हुए थे। और हमने हर बैच में कोशिश की है कि 3, 4, 5 जो है गर्व कैंडिडेट को भी प्रमोट किया है, क्योंकि इसमें जो है हमारे मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर एक बहुत हब बन के एक उभरा है, और इसमें हब में जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट की भी भागीदारी काफी प्रबल है। उस फीमेल कैंडिडेट को भी हम यहाँ काफी प्रमोट कर रहे हैं, और हर बैच में हम फीमेल कैंडिडेट को ट्रेनिंग के माध्यम से अवेयर करते हैं और एग्रीवेंचर उनका स्थापित करवाते हैं। चाहे वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में गोट्री की बात करें, चाहे आप विदिशा अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एग्री क्लिनिक की बात करें, या फार्म मशीनरी यूनिट की बात करें, या फिर हम डेयरी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की बात करें, तो सारी फील्ड में हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह हमने जो है महिला कैंडिडेट की गोट्री यूनिट स्टेब्लिश करवाने में बैंक के माध्यम से, जो बैंक थोड़ा सा हिचकिचाती थी वहां लोन के लिए, तो वहां भी हमने मैनेज की सपोर्ट से और अपने कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की सपोर्ट से हमने झाबुआ में भी जो फीमेल कैंडिडेट जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की थी, उन्हें भी हमने गोट्री यूनिट स्टेब्लिश करवा के बहुत अच्छा व्यवसाय उनका स्थापित करवाया है। साथ ही साथ जो हमारा डेयरी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें भी हमने रायसेन जिले में फीमेल कैंडिडेट को एक प्रमोट किया है, और उन्होंने अपना एग्रीवेंचर स्थापित किया है, और बैंक के माध्यम से, बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से उन्होंने जो है लोन प्राप्त किया, और उसमें बहुत अच्छा कर रही है। एक साथ ही साथ हमारा एग्री क्लिनिक के केस में हमारा जो है हायर अमाउंट जो गया है अभी 27 लैक्स जो फीमेल कैंडिडेट का गया है, वो एग्री क्लिनिक में बहुत अच्छा वो कार्य कर रही हैं, और बहुत अच्छा उनका लगभग 1 करोड़ टर्नओवर जो हमारे रायसेन जिले में एक फीमेल कैंडिडेट के रूप में है, तो उनका बहुत अच्छा व्यवसाय स्थापित है, क्योंकि उनका सेकंड थर्ड बैच में था। तो आज हमने जो है फर्स्ट बैच वालों को 2 एग्रीप्रेन्योर को यहाँ बुलाया है, वो आपके साथ बात करेंगे और आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना एग्रीवेंचर स्थापित किया। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमारा एक 7 बैच जो रनिंग में है, 7वां बैच, उसमें 35 कैंडिडेट हैं, जो 14 तारीख से स्टार्ट हुआ है 14 सितंबर को, और उसका समापन हमारा जो है 28 अक्टूबर को है। और इसमें हमने जो है अभी 35 कैंडिडेट हैं, इसमें लगभग हमारा 4 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं, और वेल जो है एजुकेटेड कैंडिडेट हमारे पास इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो एमएससी, चाहे एमएससी बॉटनी हो, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर हो, या फिर हमारे एमबीए हो, जो जिसने एमएससी करने के बाद जो कर रहे हैं, और जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित हैं, या फिर खुद का व्यवसाय स्थापित कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, वो इस तरीके से कैंडिडेट हमारे यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है। और अभी पूरे मध्य प्रदेश से हमारे जो एमएससी और पीएचडी कैंडिडेट जो प्राइवेट जॉब करने के बाद एग्री क्लिनिक को करने के लिए उत्साहित हैं, और हमारे लिए वो दिन पे दिन वो फोन कर रहे हैं कि हमें जो है अब नेक्स्ट बैच में हमें करना है। तो इस तरीके से हम मैनेज के माध्यम से और अपने कृषि विज्ञान केंद्र के परिवार के माध्यम से हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारा जो 30% जो लोन सैंक्शनिंग रेट है, उसे हम 40% लेके जाना है, और हमें जो है वो मैनेज की टीम की अगर सपोर्ट रहती है, तो हम इस साल मैं लगभग 40% हम लोन सैंक्शनिंग रेट को अपना पहुंचाएंगे, और ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है, और हम बहुत अच्छा इसमें करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ न्यूज कवरेज है जो हम समय समय पे उनका न्यूज कवरेज करवाते हैं अपने एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के तहत जो प्रशिक्षण प्रारंभ होता है, इनागुरेशन होता है, या वैलिडिटी फंक्शन होता है, या फिर कोई एग्रीप्रेन्योर बहुत अच्छा करता है, तो उसके हम जो मध्य प्रदेश में पूरी मध्य प्रदेश में एक पत्रिका चलती है, जो हमारे न्यूज पेपर चलते हैं, उनके माध्यम से भी हम उनका जो हाईलाइट करने के लिए न्यूज कवरेज करते हैं, जिससे समय समय पे हमारे जो एग्रीप्रेन्योर खुद भी उस चीज को पढ़ने के बाद उत्साहित हो और उस चीज को और आगे बढ़ाए, और किसानों की जो आमदनी है, वो खेती की आमदनी को किसानों की बढ़ाने के लिए एक सही मार्गदर्शन और सही दशा और सही दिशा देने का वो प्रयास करेंगे। ये हमने कुछ सक्सेसफुल स्टेब्लिश एग्रीवेंचर के अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनका
जो यहाँ पर एग्जीबिशन के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका किसान मेला हो या एग्जीबिशन हो या ट्रेनिंग हो, उसमें हमने कुछ जो एग्रीप्रेन्योर है उनका हमने एक ये तैयार किया है, और उसमें हम उसके माध्यम से जो हमारे राबे के स्टूडेंट आते हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां होती है हमारे भोपाल में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं या ICR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटियां हैं, वहां भी हम उनका भेजते हैं। इसमें कुछ का हमने ये दिया है, लगभग 97 का तो नहीं है, लगभग हमने लगभग जो हमारे अच्छे लोन जिनको है, जिनका राउंड द ईयर बहुत अच्छा टर्नओवर है, उसका हमने यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी पब्लिश की है। उसमें कोशिश हमारी ये है कि जो ICR की वेबसाइट है, ICR जो इंडिया की दिल्ली से गवर्न होता है, तो उसकी वेबसाइट पे भी हम अपने जो सक्सेसफुल एग्री वेंचर हैं या हमने जो अभी तक अचीवमेंट किया है, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उन सक्सेसफुल एग्री वेंचर की स्टोरी ICR की वेबसाइट पे भी हम जो है उसको अपलोड करवाने के लिए प्रयासरत हैं, और वो जल्दी ही ICR की वेबसाइट पे भी उनकी सक्सेस तरीके से हमने कुछ ये उनका दिया है, जिससे जैसे 25 लाख हमारे ये कुछ और हमारे इसमें एग्रीप्रेन्योर है जिनका हमने जो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से किया है, जिसमें एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट इसमें हैं, जिसमें कौशल सिंगोरिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 20 लाख के उन्होंने बैंक लोन के माध्यम 7,20,000 की सब्सिडी के माध्यम से उनका इस समय जो टर्नओवर है लगभग 80 से 90 लाख रुपए का टर्नओवर है। बहुत अच्छा व्यवसाय है। MCA करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी छोड़ने के बाद अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये कुछ हमने एग्रीप्रेन्योर की लिस्ट तैयार की थी, जिससे देखने के बाद जो नव युवा है उससे प्रोत्साहित हो और अपने व्यवसाय को स्थापित करें। नेक्स्ट प्लीज। कुछ हमने नाबार्ड के साथ भी अपने पूर्व में एक्सपीरियंस है हमारा, जिसमें हमने कई बहुत सारे प्रोजेक्ट नाबार्ड के साथ चलाए हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। 2009-10 में भी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच यूटिलाइजेशन एग्रो बायो वेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट लैंड फॉरेस्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन विद लाइवलीहुड एनहांसमेंट फैक्टर एंड रिड्यूसिंग माइग्रेशन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। एक हमने ये चलाया था। एक हमने प्रोडक्शन और प्रमोशन जो NPV वायरस का और नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड का चलाया था, वो भी हमने नाबार्ड के माध्यम से एक प्रोजेक्ट चलाया है। और फार्मर्स क्लब जो हमने 10-11 में चलाया था नाबार्ड के माध्यम से, उसको भी हम चला चुके हैं। सीड ब्रेस प्रोग्राम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लीड ग्रुप प्रोजेक्ट एक 11-12 में हमने रन किया था। तो इस तरीके से हमने नाबार्ड के साथ भी काफी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन किया है। ये कुछ उस प्रोजेक्ट के आदिवासी बेल्ट में कुछ जो हमने 10-11-9-10 में चलाए थे, तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स है, और हम पहले से ही नाबार्ड के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन। मैं पूरी मैनेज टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरीके से मुझे जो है यहाँ पर ये वेबिनार प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया। और इस तरीके से हमने जो एग्रीप्रेन्योर या नोडल ऑफिसर हैं, वो जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जो फूड अरेंजमेंट है, फूड अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं अपने एग्रीप्रेन्योर को प्रोवाइड कराने का, क्योंकि हमारी सेल्फ हॉस्टल है, सेल्फ मेस है, और हम कोशिश करते हैं कि उनको मार्केट सर्वे के लिए या फिर उनको विजिट के लिए या फिर उनका फूड अरेंजमेंट के लिए हम बहुत अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और कोई भी एक भी एग्रीप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि जो हमारे ऊपर उंगली उठा दे आज की तारीख में कि हमारे फूड अरेंजमेंट में या हॉस्टल अरेंजमेंट में या ट्रेनिंग अरेंजमेंट में कोई कमी है। और कोशिश करते हैं, जो हम यहाँ पर एक्सपर्ट बुलाते हैं, तो वो PhD वाले एक्सपर्ट हमारे रहते हैं। और जो भोपाल में यूनिवर्सिटियां हैं, साथ ही साथ जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंजबसौदा है, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे हम बुलाते हैं। और हम जो PhD हैं और जो 4-4, 5-5 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको हम जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं।
तो कोशिश हमारी ये है कि हम और अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं। हम अपने जो लोन अभी हमारा 30% सैंक्शनिंग अमाउंट है, तो हम विश्वास दिलाते हैं मैनेज टीम को कि इस साल 2024-25 में हम उस लोन सैंक्शनिंग रेट को लगभग 40% के लेके जाएंगे। और अगर मैनेज की सपोर्ट रही और कृषि विज्ञान केंद्र परिवार एक कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, तो हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि हम जो सिलेक्शन करते हैं बच्चों का या स्टूडेंटों का एग्रीप्रेन्योर का, तो लगभग हम बीएससी या बीएससी एजी वाले लड़कों का लगभग हम सिलेक्शन करते हैं जो 2 साल या 3 साल जो ड्रॉप आउट है, जो गांव में बेरोजगार है। तो ऐसा कैंडिडेट वो एग्री वेंचर स्थापित करने के लिए बहुत ही लालच है और बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। तो अब बैंक के माध्यम से जब कहीं प्रॉब्लम आती है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे अपने पर्सनल रिलेशन हो या हमारे कोई जानने वाले कोई अपना रिलेटिव हो, उसके माध्यम से हम यूज करके उनको लोन सैंक्शनिंग करवाते हैं। चाहे वो स्टेट बैंक की बात हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो, मध्य प्रदेश क्षेत्र ग्रामीण बैंक की बात हो या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात हो। तो हमारे लगभग लगभग हर बैंक से लगभग 5-6 बैंकों से हमारे लोन सैंक्शन हुए हैं। और बहुत अच्छा ये हमारा एक क्रेडिट मिस्टर पी उदय जी को भी जाता है कि टाइमली वो जो है मुझे बहुत काफी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मैं 100% कोशिश करता हूं कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र के अपने मैंडेटरी वर्क के साथ हमने जो एक टीम रखी हुई है अपने एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के लिए, उस टीम को मुझे दिन में 1 से 1.5 घंटा, चाहे वो मैं शाम को दूं या सुबह को दूं या दोपहर को दूं, अपने एसेंशियल वर्क में से निकाल के अपना जो समय उनको देता हूं। और जो हमारे एग्रीप्रेन्योर रहते हैं उनके साथ भी मैं प्रतिदिन लगभग 15 से 20 मिनट मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूं कि किसे क्या समस्या है, किनको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी डीपीआर बनाने में प्रॉब्लम है या फिर उनको क्लास लेने में प्रॉब्लम है, यहाँ पर हॉस्टल अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है। तो मैं प्रतिदिन उनके साथ खड़ा रहता हूँ और हमें जो है उनका एक प्लेइंग फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनको एक बोरियत ना हो 45 दिनों में। तो शाम के टाइम और संडे के दिन प्लेइंग फैसिलिटी हम देते हैं, जैसे हम क्रिकेट का या बैडमिंटन का। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उनको 45 दिन एक जो है एक बहुत ही फ्रूटफुल एनवायरनमेंट हो और उसमें उनको लगे कि हाँ, ये हम एग्री क्लिनिक का बिजनेस हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और उसी का नतीजा आज हमारे पास ये है कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास प्रतिदिन 8 से 10 फोन आते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी में 4-4, 5-5, 7 साल से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पास दिन पे दिन फोन करके ये कह रहे हैं कि हमें भी आपकी ट्रेनिंग में आना है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैनेज की टीम को। इसी तरीके से हमें जो है सपोर्ट करते रहे और आगे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समय ज्यादा ले लिया मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी हमारे 2 एग्रीप्रेन्योर भी हैं, उनको भी बोलना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much for your very informative presentation. Your presentation covered the district profile of the resin and the area and quality of major crops and your mandates. And ये भी मैं बोल सकता हूँ कि आपकी वजह से it is this platform has not only become the class learning platform for agri minutes. जो भी नया एटीए है वो भी आप जो भी जैसा कर रहे हैं आप उसका देख के वो लोग भी सीख जाता है. They will also learn how to do the trainings also. It थैंक will यू। be, thank you, sir. Thank you so much. And today's order of the day is entrepreneurship. आपका mandate entrepreneurship है, and our objective is also to provide employment opportunities for the unemployed agriculture graduates. That you are doing very well, sir. And your handholding support also very wonderfully you are doing to all the. Thank you for that. And I request our next speaker, Mr. Sandeep Kumar ji. मिस्टर संदीप सोलंकी इज एग्रीप्रेन्योर हियर। सर अभी संदीप का होगा. जी, संदीप सोलंकी। Sandeep ji, please introduce yourself and start the.
sir, good morning. हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम संदीप सोलंकी है। मैं हाँ सर, आप शुरू कर सकते हैं। सर मेरा नाम संदीप सोलंकी है। मैं विलेज खंडेरा, डिस्ट्रिक्ट रायसेन का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फैमिली का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो मैं शुरू से अपने दादा को, अपने चाचा को खेती करते हुए देखता था। बचपन से मेरे मन में विचार आता था कि मैं भी यार ऐसा कुछ कुछ व्यवसाय करूं, जिससे कि मैं अपनी कृषि को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकूं। तो फिर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मैंने बीएससी बायो से बीएससी किया है। उसके बाद मैंने सोशलॉजी से एमए किया है। मैं भी मैंने भी कई निजी संस्थानों में प्राइवेट नौकरी की है। प्राइवेट नौकरी करने में लेकिन मुझे अपने मन में कभी कभी भी शांति नहीं मिली। मैं सोचता था यार मैं अपना खुद का कोई व्यवसाय स्थापित करूं। तो मैं अपने प्राइवेट नौकरी के साथ साथ में केवी के रायसेन में आता रहता था। वहां पर मैं हमेशा मुझे अपनी खेती से जुड़ी हुई जानकारी मिलती थी। कई की बीमारी आ जाती थी, कई प्रकार की के नए नए बीजों के बारे में, नई नई तकनीक के बारे में मैं जानकारी लेने के लिए केवी के आता रहता था। तो वहां पर मेरी मेरी हमेशा केवी के रायसेन के सारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमेशा मेरी मदद करते। तो मेरे को पता चला यहाँ पर कि आपको अपने मैं बहुत दिनों से अपने खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाह रहा था। उसके लिए मुझे कुछ मैं अपना खुद का करना चाह रहा था। उसके लिए मुझे केवी के रायसेन में पता चला कि जिसको हैदराबाद मैनेज संचालित करता है, शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मुझे भी वो करना है। तो मैं जो 2022 में जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने इसमें भाग लिया। इसमें 45 डेज का मैंने कोर्स किया। मैंने कोर्स में जो 45 डेज का जो कोर्स होता है उसमें जो रोज नए नए जो एक्सपर्ट आते हैं उन्होंने अपने व्यवसाय को किस तरीके से करना चाहिए, उसमें किस तरीके से उसको अपने व्यवसाय को लाभकारी बनाना है, लोगों को किस तरीके से उससे जोड़ना है पेशा को। तो मैंने वो सारी जो 45 दिन में जो बिजनेस से संबंधित जो नई नई छोटी छोटी बारीकियां हैं वो मैंने सीखी। उसके बाद में मैंने फिर मैंने सबसे पहले मैंने एसबीआई से नवंबर 2022 में 2022 में मैंने 20 लाख का जो टोटल अमाउंट लोन का 20 लाख लोन लिया और उससे अपना खुद का एग्री क्लिनिक स्थापित किया, जो केबी के पास में ही 2 किलोमीटर गांव पर है। इसमें मैंने पहले अभी ये मेरा लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। पहले वर्ष में मैंने लगभग 30 से 40 लाख का और दूसरे वर्ष में मैंने लगभग 80 लाख का बिजनेस स्थापित किया। 80 से 90 लाख का मैंने बिजनेस स्थापित किया, जिसमें मैं मेरा जो एग्री क्लिनिक है उससे उसके आसपास के लगभग मैं 15 से 20 गांव को कवर करता हूँ, जिसमें लगभग 180 से लेकर 300 फार्मर्स जुड़े हैं, जिनको आज से पहले आज से पहले जहाँ पर गांव के आसपास में एग्री क्लिनिक नहीं हुआ करते थे, तो वो जो कृषक जो फार्मर्स थे वो लगभग 20-20 किलोमीटर दूर जाकर एग्री क्लिनिक से अपनी जो कृषि के काम में जो पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं
वो लेके आते थे, उनको उनके नए रेट्स नहीं मिलते थे। और कौन सा केमिकल्स, कौन सा पेस्टिसाइड कब किस अवस्था में क्लिनिक स्थापित हुए, वो हर जगह लगभग लगभग 2-5 किलोमीटर के डिफरेंस से हो गए हैं, जिससे किसान वहां पर जाते हैं, जिससे खेती के बारे में, खेती की नई नई तकनीकी के बारे में, की फसल में क्या बीमारी है, इसका किस तरीके से निवारण किया जा सकता है, ये किस किस चीज की डिफिशियंसी से लगी है, ये सारी जानकारी एग्री क्लिनिक के माध्यम से किसानों को मिलती है, और उनको अपनी दवाओं पे रीजनेबल प्राइस मिलते हैं, जिससे वो अपनी अपनी इन्होंने जो खेती है उसकी आमदनी को लगभग डबल कर लिया है, और अपने काफी अच्छा व्यवसाय खेती के बारे में कर रहा है। मैं मेरे मेरे एग्री क्लिनिक का नाम है राधिका कृषि सेवा केंद्र, जो मैंने बताया कि सन 2022-23 में स्टैब्लिश किया था। इसमें मैं फर्स्ट बैच में मैंने ये एग्री क्लिनिक का कोर्स किया था। उसके बाद में मैं, क्योंकि मेरा मेरा एग्री क्लिनिक है वो कृषि विज्ञान केंद्र के पास में ही है, तो यहाँ पर जो नए बैच स्टार्ट होते हैं, वो नए नए बैच स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ की जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे मेरे एग्री क्लिनिक पर विजिट भी करते हैं, और खासतौर पर जो हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, मैं उनको स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशल थैंक्स, कि सर वो बार बार मुझे मोटिवेट करते रहते हैं अपने अपने एग्री क्लिनिक को आगे डेवलप करने के लिए, किसानों को किस तरीके से सलाह देनी है, उनको किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करना है। तो मैं सबसे पहले केवी के और सर को, वहाँ के सभी साइंटिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद देता Thank you, Mr. Sadipji, for sharing your experiences. And now, our main objective of the CABC scheme is to provide quality advisory services to the farmers. And I think you are doing that very well. And the government is providing subsidy. Why the government is giving something? Why? Because to encourage the CABC trained agriculturists to provide quality services to the farmers. That I think you are doing very well, sir. Thank you. And our next speaker is will take the questions at the end of the completion of 3 sessions. Our next speaker will be Rohit Dangi. Mr. Rohit Dangi. हेलो नमस्कार सर। आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इंट्रोड्यूस करके सेशन शुरू करें। जी सर। स्टार्ट प्लीज। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम नमस्कार, मेरा नाम रोहित दांगी है। मैं तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने 12th तक मैथ बायो लिया हुआ था। इसके बाद मेरा 12th के बाद मूड चेंज हुआ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एग्रीकल्चर से रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया, जिसके बाद जो मैनेज हैदराबाद द्वारा कई वर्षों से जो योजना चलाई जा रही है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के अंतर्गत नॉर्दर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से ट्रेनिंग प्राप्त की
वर्ष 2022 में। जो ट्रेनिंग मैंने डॉक्टर मुकुल सर, डॉक्टर स्वप्निल सर, डॉक्टर आलोक सर, डॉक्टर प्रदीप सर, डॉक्टर अंशुमन सर एंड समस्त स्टाफ के द्वारा के मार्गदर्शन में मैंने जो पूर्ण की, वह ट्रेनिंग मेरी 45 दिवसीय थी, जिसका समय काल 11 अप्रैल 2022 से 25 मई 2022 तक रहा, जिसमें मेरा ट्रेनिंग जो आईडी मिली हुई थी मुझे, उसका नंबर था MP5627। इसके बाद मैंने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बैरसिया ब्रांच में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें मेरी प्रोजेक्ट जो कॉस्ट थी वो 20 लाख रुपए थी, जिसमें मैंने 25% मार्जिन मनी के हिसाब से 5 लाख रुपए जमा करने के बाद मुझे दिसंबर 2022 में 15 लाख रुपए का लोन प्राप्त हुआ। लोन प्राप्त होने के बाद मैंने बैरसिया में मंडी गेट के पास बस स्टैंड पर दांगी एग्रो सॉल्यूशन की नाम की एक शॉप ओपन की, जिसके बाद मैंने उसमें सीड्स, एनिमल फीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स सभी चीज़ों प्रोडक्ट रखे। जिसके बाद मैंने आज के टाइम में हर गांव में, हर चौराहे पे नई नई दुकानें हैं, जिससे फार्मरों को, कुछ लोग तो किसान मतलब हम जैसे ही कुछ लोग लूट रहे हैं। जिसके बाद मैंने किसानों के पास गया, उनकी समस्याओं, फसलों के बारे में जाना कि क्या समस्या हो रही है, किस टाइम पे कौन सा रोग आ रहा है, किस टाइम पे क्या उपचार करें, समय समय पे उनके रोगों के बाद फसलों के रोगों के बारे में जाना। उसके बाद उनको उनके निराकरण के बारे में बताया कि किस समय पे क्या उपयोग करें जो आपकी फसल को नुकसान ना हो, व उनको नए नए उत्पाद जो भी अभी आ रहे हैं उनके बारे में बताया कि पुराने जो उत्पाद चले आ रहे हैं, जो भी केमिकल पुराने चले आ रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो किसी से कुछ कहीं कचरा नहीं मर रहा है, तो कहीं इल्लियां नहीं मर रही हैं, कीट पतंगे नहीं मर रहे हैं। तो जो भी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और इसके बाद जाके उनके यहाँ डेमो लगवाना, डेमो के बाद उनकी फील्ड विजिट करके फीडबैक लेना कि समस्या का निराकरण हुआ या नहीं हुआ, या जो भी कंपनी द्वारा जो फील्ड पे असिस्टेंट्स या वर्कर्स रखे जाते हैं, एम्प्लॉय वगैरह, उनके द्वारा जगह जगह जाके डेमो कराना, फील्ड विजिट करवा के उनके यहाँ फार्मर मीटिंग करवाना। इसके बाद जो अभी नया भारत सरकार द्वारा इफ्को कंपनी का नैनो डीएपी जो चला आ रहा है, जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, जिसमें एक बोरी खाद की डीएपी की 1350 की आती, वहीं एक बोतल नैनो डीएपी की 600 रुपए की आ रही है, जिसमें फार्मर का वही है, एक बोरी एक कुंडल में मिलाता है, वहीं एक बोतल को एक कुंडल में मिलाना, जिससे उसका सीधा 750 रुपए की बचत हो रही है। वहीं अभी मैं लगभग 35 से 40 गांव के किसानों से जुड़ा हुआ, जिसमें किसानों की संख्या लगभग 3000 के आसपास है, जिसमें मेरी दुकान पे अभी 2 एम्प्लॉय व 4 लेबर हैं। मैं 2 साल मेरे को हुआ है अभी वर्क करते हुए, जिसमें मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अभी मेरा शुरुआत में जब मैंने जनवरी 2023 में दुकान खोली थी, तब मेरा ज़्यादा टर्नओवर नहीं था। 2023 तक मात्र 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच हुआ था, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 60 लाख तक पहुंच चुका था। जो अभी देखा जाए तो टोटल मेरे 2 साल में अभी तक का टोटल टर्नओवर 92 लाख हो चुका है। ये मेरी दुकान है जो मैंने रेंट पे ली हुई है, दांगी एग्रो सॉल्यूशन, जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर सभी चीज है।
Thank you very much. मैं सभी मैनेज टीम और समस्त के रायसेन स्टाफ को जिन्होंने मुझे समय पे मार्गदर्शन दिया, जिससे आज मैं कुछ ऊंचा कर पा रहा हूँ। Thank you. जी, धन्यवाद। Very wonderful presentation, and even I have visited the Dandi's adventure. जी सर। Participants, now the session is open for questions. If you are having any questions, you can ask. अब कुछ भी जानकारी चाहिए तो पार्टिसिपेंट्स आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा तीनों स्पीकर्स इधर है प्रेजेंट है। Can interact with the beauty rising मतलब संकुल सर and our two mates, Mr. Sandeep Solanki and Rohit Dangi. पार्टिसिपेंट्स आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। The session is open for questions. You can unmute yourself and you can ask. आयुष कुशवाहा, अशोक रेड्डी जी, निखिल मालविया, स्टार्ट कर सकते हैं आप। If you're having no questions, we'll wind up the session. आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आप अभी thank you all the participants for your valuable time. And thank you especially Theory and Dr. Mukul Kumar sir. And Thank you. I wish many more glorious years for the rural administration, the service of farmers. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all the participants.